Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today we will start our new lecture. The title is The Treatment of Wastewater, which is basically the continuation of the previous lecture. In the previous lecture, we just start the two treatment process. The first one is the screening, and the next one is the grid chamber. The third one is the skimming tank and detrus tank, and the different types, the purpose of each treatment unit, and the design of different parts. So basically this lecture is also the continuation of the previous lecture, which is the basically the type of sedimentation tank, and within the sedimentation tank, which is of two type. The first one is the primary sedimentation, the second one is the secondary sedimentation tank. And we just taught the primary sedimentation tank, basically the primary clarifier, which is also called the primary clarifier. If you see the previous lecture, which is the type of sedimentation tank classified according to the nature of the working, and classified according to the location of the treatment unit. The first one is the fill and draw type. The second one is the continuous flow type. So fill and draw type, we just want to fill the treatment tank, sedimentation tank, and then start the operation process, which is the settling of the solid particles within the sedimentation tank by giving them a detention time. And the second one is the continuous flow type, in which we continue the wastewater for treatment, and both the operation process and the flow are in the continuous manner. The second one is the classified according to the location, which is the primary clarifier, and the second one is the secondary clarifier. Basically the primary clarifier is used for to remove the large heavy solid particles or organic matters that are settle down very early. So some basic terms which are used in the design of the primary sedimentation tank. Before to start this lecture, I just want to show you a small tutorial video. You just watch this video on YouTube also, but take a look to this video. It is very useful. So this is you can see this ring is flowing in the flush. This is the branch sewer, and this is the gravity sewer, which is also called the main sewer. And every compartment at every house sewer is connected to this main sewer. You can see this branch sewer is connected to this sewer. This is basically this is the manhole, and this is what I'm talking about is the sump well. सम्प वेल वो जगह है जहाँ पे ये एक वेल है, जहाँ पे सारा जो वेस्ट वाटर है वो हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं, और उस वेल से फिर जो है वो हम वेस्ट वाटर को किसी ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए यहाँ से हम जो है थ्रू पंप एंड थ्रू प्रॉपर पाइप डिज़ाइन जो है वो हम कर लेते हैं इसकी, और उससे पाइप के ज़रिए हम यहाँ से जो है वो वेस्ट वाटर फिर रिमूव करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। ये आप देख ले, यहाँ पे वेस्ट वाटर जो है वो जमा हुई, और फिर यहाँ से एक पाइप के ज़रिए ये ट्रीटमेंट प्लांट तक जो है ये पानी चला गया। ये वेस्ट वाटर यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट के लिए रवाना हुआ। So this is the first, this is the signal. Basically this is the automatic system. So
this is the screening process. You can see we discussed the two different types of screens. So this is the first type of screening, which collects some large particles from the wastewater. You can see the large particles from the wastewater. So the second process is the grit chamber. You can see the grit chamber is to remove the heavy suspended particles that are almost, the retention time is for that is 1 minute. So you can see the grids or heavy particles that are present in the wastewater are removed from the grit chamber. The third one is the primary clarifier, which is our new topic. Primary clarifier is basically a sedimentation tank in which the solid particles are settled down under gravity without any provision of any energy, any electrical or mechanical energy. The third one is the aeration basin, in which the small suspended particles and scum are produced in the wastewater through aeration. The small particles are bubbled up and the particles are moving toward the surface. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो विदाउट स्कम एंड डेब्रिस जो है वो वेस्ट वाटर फाइनल क्लेरिफायर पे जो है वो वाटर आ गई है. ये दिस वन इज द डाइजेस्टर. यहाँ पे जो है जो ये देख लें जो हैवी वेस्ट कंटेंट है, ऑर्गेनिक लोड है, यहाँ से वो फाइनल क्लेरिफायर पे जो है वो यहाँ से निकल गया. द फाइनल स्टेज इज़ द अल्ट्रा वायलेट रेज. इसे हम पास कर लेते हैं अगर इसमें बैक्टीरिया वगैरह हो, ताकि वो इसको हम बेसिकली कहते हैं डिसइंफेक्शन प्रोसेस. सो डिसइंफेक्शन प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ़ प्रोसेस होते हैं. ये आप देख लें, ये जो है वो क्लीन वाटर यहाँ पे सी को जो है वो हम थ्रू कर रहे हैं. तो ये सारा कुछ जो है ये हम पढ़ते हैं बेसिकली द वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में. So basic terms used in the design of the tank. First one is the retention time. इसको हम hydraulic retention time भी कहते हैं. Flow through velocity किसे कहते हैं, horizontal flow velocity किसे कहते हैं, settling velocity किसे कहते हैं, hydraulic loading rate है, या इसको हम कहते हैं surface loading rate या overflow rate. तो HLR या SLR या OFR, so तीनों एक ही चीज़ है. WLR जो है वो wear loading rate है, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट VLR इसको हम कहते हैं, या ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इसको हम कहते हैं OLR. ये बेसिकली BOD एंड COD है. द 7 month एज द लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ. ये इस तरह होता है कि सपोज़ हमारे पास एक टैंक है, तो टैंक या सर्कुलर टैंक होगा या रेक्टेंगुलर टैंक होगा. तो अगर रेक्टेंगुलर टैंक है तो उसकी डिज़ाइन का मतलब यह है कि उसका जो उस टैंक रेक्टेंगुलर टैंक में 3 पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ, विड्थ और डेप्थ. तो अगर आपने लेंथ मालूम की, विड्थ मालूम की और डेप्थ मालूम की, तो बेसिकली ये एक डिज़ाइन ऑफ है ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक. द नेक्स्ट वन इज़ दी, अगर आपके पास सर्कुलर टैंक है तो उसकी जो है वो 2 पैरामीटर्स होते हैं. एक डायमीटर होता है, सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं, जिसे हम सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं पाई डी स्क्वायर/4 फार्मूला से, और एक है डेप्थ.
तो ये लेंथ, विड्थ और डेप्थ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे वॉल्यूम ऑफ द टैंक बनता है। और अगर सर्कुलर के लिए हम जो है वो मालूम करें, टैंक के लिए अगर हम वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो इसमें सिंपली दो चीज़ें होते हैं, एक सरफेस एरिया होता है और एक डेप्थ होता है। तो सरफेस एरिया सर्कुलर का हम 5d²/4 से मालूम करते हैं, और डेप्थ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो सिंपल ये फार्मूला है सर्कुलर के लिए। तो ये 1 बाय 1 हम जो है इंशाल्लाह विद एग्जांपल जो है वो हम पढ़ेंगे कि डिटेंशन टाइम क्या है, फ्लो थ्रू वेलोसिटी किसे कहते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी, एंड 1 बाय 1। सो स्टार्ट हम लेते हैं डिटेंशन टाइम से। तो बेसिकली डिटेंशन टाइम का मतलब क्या है, सपोज़ हमारे पास वेस्ट वाटर है, और उस वेस्ट वाटर को हमने पहले पहुंचा दिया प्राइमरी क्लेरिफायर या सेडिमेंटेशन टैंक में। और सेडिमेंटेशन टैंक में इसलिए ताकि जो सॉलिड्स पार्टिकल है ताकि वो उसमें आसानी से बैठ जाए। तो उस वेस्ट वाटर को ले आने के लिए हम सेडिमेंटेशन टैंक में ये ले आते हैं। तो जितना टाइम ये वेस्ट वाटर उसी टैंक में रहता है उस टाइम को हम कहते हैं डिटेंशन टाइम। या सिंपल इसका एक मिसाल अगर आप ले लें कि एक पार्टिकल है, सपोज़ वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टैंक कितना टाइम लेता है ताकि ये पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम ऑफ द टैंक जो है वो जाए। तो उस जब ये मतलब टॉप से बॉटम तक नीचे बैठ जाए तो जितना टाइम ये लेता है उस टाइम को हम कहते हैं डिटेंशन टाइम। तो सिंपल ये एक फार्मूला से हम मालूम करते हैं, v = q × t, या डिस्चार्ज जो है वो q जो है वो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम के बराबर है। और तो फिर वेलोसिटी = q × t, या t = v डिवाइड बाय q, वेलोसिटी डिवाइड बाय q वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो वॉल्यूम डिवाइड v = वॉल्यूम, यहाँ पे जो है t = वॉल्यूम डिवाइड बाय डिस्चार्ज। तो अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और डिस्चार्ज गिवन है तो आप इससे टाइम जो है वो मालूम कर सकते हैं। और वो टाइम जो है यहाँ पे हम वो टाइम को कहते हैं डिटेंशन टाइम, और ये आवर्स में होता है डिटेंशन टाइम। इसको हम कहते हैं v = वॉल्यूम एंड q इज़ द फ्लो ऑफ द वेस्ट वाटर। Typically the detention time for the sedimentation tank is 2 to 3 hours। प्राइमरी क्लेरिफायर के लिए हम 2 to 3 hours ये पानी जो है वेस्ट वाटर जो है हम रहने देते हैं ताकि जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जो है वो स्लज जोन में जो है वो बैठ जाए। तो इसको हम कहते हैं डिटेंशन टाइम। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि सपोज़ हमारे पास एक ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर वाइड है, 20 मीटर लॉन्ग है। वाइड मींस इसकी विड्थ है, 20 मीटर इसकी लेंथ है, एंड द वेस्ट वाटर डेप्थ ऑफ 2 मीटर एंड और इसमें जो वाटर डेप्थ है वो 2 मीटर है, मतलब इसका जो डेप्थ है वो 2 मीटर है। इफ़ द वेस्ट वाटर थ्रू द टैंक इज़ 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, कैलकुलेट द डिटेंशन टाइम। अगर ये जो वेस्ट वाटर है ये टैंक को जो जितना वॉल्यूम जितने टाइम में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आ रहा है वो 0.5 मीटर क्यूब है। तो डिटेंशन टाइम हम किस तरह मालूम करेंगे, तो t = वॉल्यूम डिवाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय 24। v = वैसे गिवन है, वॉल्यूम जो है वो हम मालूम कर सकते हैं, लेंथ, विड्थ और डेप्थ दोनों तीनों गिवन है तो इससे हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। और q जो है वो गिवन है तो t = वॉल्यूम डिवाइड बाय q, तो ये हमें 120 देगा। 120 हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आवर्स में जो है ये आंसर जो है वो देगा। एक सिंपल एग्जांपल है, इस तरह हम डिटेंशन टाइम मालूम कर सकते हैं। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द डिटेंशन टाइम एन फॉर अ क्लेरिफायर विद अ वॉल्यूम ऑफ 25,000 गैलन। हमारे पास सपोज़ गैलन जो है ये भी वॉल्यूम का यूनिट है। हमारे पास अगर एक टैंक का वॉल्यूम जो है वो गिवन है, सपोज़ 25,000 गैलन एक टैंक का वॉल्यूम है वो गिवन है, और उसमें फ़्लो जो है वो गिवन है। तो
वॉल्यूम जो है वो गिवन है 25,000 गैलन है, और हमारे पास क्यों जो है वो भी गिवन है 310,000 गैलन पर डे, ये इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज। तो वॉल्यूम और फ्लो दोनों गिवन है। सिंपल इससे हम डिटेंशन टाइम जो है वो डेज़ में मालूम कर सकते हैं। उसको हम सिंपल 24 से मल्टीप्लाई करके उसको आवर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह इसको एक प्रॉब्लम भी है कि फाइंड द डिटेंशन टाइम इन आवर्स फॉर अ सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 75,000 गैलन एंड द फ्लो ऑफ 900,000 गैलन पर डे। सपोज़ हमारे पास एक सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक है और उसका वॉल्यूम जो है वो हैविंग द वॉल्यूम जो है वो 75,000 गैलन है, और इसको जो फ्लो है वो 900,000 गैलन पर डे इसमें जो है वो फ्लो हो रही है। तो इसका डिटेंशन टाइम कितना होगा, तो सिंपल वॉल्यूम डिवाइड बाय फ्लो जो है वो हम इससे मालूम कर सकते हैं डिटेंशन टाइम। तो ये इसको हम कहते हैं डिटेंशन टाइम। द नेक्स्ट वन इज़ द फ्लो थ्रू वेलोसिटी। तो फ्लो थ्रू वेलोसिटी इसको हम कहते हैं VH वेलोसिटी, या इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। द नेक्स्ट वन इज़ द सेटलिंग वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं VS। एक को हम कहते हैं VH और एक को हम कहते हैं VS। तो एक होता है सेटलिंग वेलोसिटी और एक होता है फ्लो थ्रू वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इसको समझने के लिए सपोज़ हमारे पास एक टैंक है, तो उस टैंक का एक विड्थ भी होता है और एक डेप्थ भी होता है। इस 3 डायमेंशन हर एक टैंक का होता है, एक लेंथ होता है, विड्थ होता है और डेप्थ होता है। तो सपोज़ एक पार्टिकल जो है वो टैंक जो मतलब टॉप से एक पार्टिकल जो है वो अंडर ग्रेविटी नीचे आ रही है। एक पार्टिकल, सिंपल एक पार्टिकल सपोज़ हम ले रहे थे, तो इस पार्टिकल की जो है वो ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी एक मोशन होता है। बिल्कुल एक यहाँ एक पार्टिकल जो है वो नीचे आके बॉटम में जो है वो बैठ जाती है। लेकिन इस पार्टिकल का मोशन जो है वो 2 किस्म का होता है। एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, एक पार्टिकल यहाँ से सपोज़ यहाँ से स्टार्ट होती है तो बिल्कुल यहाँ नीचे नहीं बैठती, यहाँ से यहाँ पे आके बैठ जाती है। तो इसने 2 किस्म की जो है वो मोशन की है। एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल और एक को हम कहते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इतना जो है इसने इतना मोशन जो है वो किया है, और वर्टिकल जो इसका डेप्थ होता है तो इतना मोशन किया है। तो इस पार्टिकल की 2 वेलोसिटीज़ होती है, एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक को हम कहते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, जो अंडर ग्रेविटी जो वेलोसिटी है, ग्रेविटी की वजह से जो वेलोसिटी है, जो पार्टिकल नीचे बैठ जाती है। तो ये 2 पार्टिकल्स है। तो अगर हमारे पास VH हो तो VH से हम लेंथ मालूम या विड्थ मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है। और जो सेटलिंग वेलोसिटी है उससे हम डेप्थ मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख ले, द सॉलिड पार्टिकल इन द बेसन मूविंग विथ टू डिफरेंट वेलोसिटीज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू द ड्रैग फोर्स कॉल्ड द फ्लो थ्रू वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं VH। द नेक्स्ट वन इज़ द वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ कॉल्ड द सेटलिंग वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं VS। तो VH जो है वो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बराबर है सिंपल वेलोसिटी का जो फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय द टाइम टेकन, इसको हम कहते हैं L डिवाइड बाय T। तो VH से हम मालूम कर सकते हैं लेंथ। अगर आपको VH गिवन है कि हॉरिजॉन्टल फ्लो थ्रू वेलोसिटी इस क्लेरिफायर का ये है और डिटेंशन टाइम आपको पता होगा, तो आप सिंपल यहाँ से उस जो टैंक है उसका लेंथ जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। where L is the length of the tank, B is the width of the tank and V is the volume of the tank, which is the flow through velocity and T is the detention time। तो ये फ्लो थ्रू वेलोसिटी हम क्यों मालूम करते हैं, ताकि यहाँ से हमें लेंथ ऑफ द टैंक जो है इसका पता चले। अगर एक एग्जांपल है इसका हम कर लें, द फ्लोटिंग स्टिक ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 30 सेकंड इन अ रिएक्टर टैंक हैविंग 2 मीटर विड्थ एंड 1.5 मीटर डेप्थ, find the flow and flow through velocity।
इसमें दो चीज़ें चाहिए। एक फ़्लो मालूम करना है, एक फ़्लो थ्रू वेलोसिटी मालूम करना है। लेकिन यहाँ पे गिवन जो है वो एक स्टिक है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 15 मीटर इन 30 सेकंड। हमारे पास लेंथ गिवन है 15 मीटर, टाइम गिवन है 30 सेकंड, विड्थ जो है वो गिवन है 2 मीटर और डेप्थ जो है वो गिवन है 1.5 मीटर डेप्थ। तो वॉल्यूम हम इससे मालूम कर सकते हैं सिंपल 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। इससे हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशन होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई डेप्थ। तो इससे वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम हमारे पास मालूम हो जाएगा। और टाइम जो है वो गिवन है 30 सेकंड। तो Q इज़ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो वॉल्यूम हमने मालूम की और सिंपल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास फ़्लो मालूम हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ द फ़्लो थ्रू वेलोसिटी। फ़्लो थ्रू वेलोसिटी का मतलब यह है कि जो VH है वो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन है। तो इसमें 3 डायमेंशंस है, एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक डेप्थ है। तो इसमें आपने कौन सी फैक्टर जो है वो काउंट करना है। तो इसमें हमने सिंपल जो है वो लेंथ को काउंट करना है, जो 15 मीटर है वही हम लेंगे। तो ये 15 मीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम जो है वो 30 सेकंड है। सो 15 डिवाइड बाय 30 इज़ द 0.5 मीटर पर सेकंड इज़ दी वेलोसिटी विच इज़ कॉल्ड द फ्लो थ्रू वेलोसिटी। सिंपल यही, इसमें एक सिंपल लॉजिक यही है। अच्छा, द सेकंड वन इज़ द सेटलिंग वेलोसिटी। ये हमने पढ़ा कि सपोज़ हमारे पास जो पार्टिकल है वो दो डायरेक्शन में मोशन जो है वो करता है। द अंडर ग्रेविटी अगर ये पार्टिकल मोशन करता है तो इसको हम कहते हैं सेटलिंग वेलोसिटी विच इज़ डिनोटेड बाय VS। सो अगर आपने टैंक का सेडिमेंटेशन टैंक का डेप्थ जो है वो मालूम करना है तो इसके लिए हमें सेटलिंग वेलोसिटी की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास सेटलिंग वेलोसिटी है तो इससे आप डेप्थ ऑफ द टैंक जो है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक सैंड पार्टिकल है, वो 0.2 mm साइज़ उसका है। तो अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है उस सैंड पार्टिकल की, इज़ अब्जॉर्ब टू सेटल एट अ रेट ऑफ 2.3 मीटर पर सेकंड। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जो 0.2 mm साइज़ सैंड पार्टिकल है वो उसकी जो सेटलिंग रेट है, मतलब जो सेटलिंग वेलोसिटी उसकी है वो 2.3 है। तो अगर आपको डायरेक्ट गिवन है कि हमारे पास एक पार्टिकल है वो 0.2 mm का है और वो सैंड पार्टिकल है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं कि हमारे पास इसकी सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो 2.3 मीटर पर सेकंड होगी। वही सेम फार्मूला इसका भी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सो टाइम उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी, सिंपल वही। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, चूँकि ये पार्टिकल जो है टॉप से बॉटम तक आता है, सो टॉप से बॉटम तक को हम कहते हैं डेप्थ। तो ये D जो है वो हम यहाँ पे डिनोट करेंगे डेप्थ। वहाँ पे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, लेकिन हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल होता है लेंथ, तो वहाँ पे हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लेंथ लेंगे और यहाँ पे डेप्थ लेंगे। सपोज एक एग्जांपल है, अ ग्रेट चैम्बर हैज़ अ वेस्ट वाटर डेप्थ ऑफ 0.9 मीटर। तो जो डेप्थ है वो 0.9 मीटर है और यहाँ पे लिखा है द कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय 0.2 mm सैंड पार्टिकल टू सेटल एट द बॉटम। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता चला कि 2.3 मीटर पर सेकंड इसका सेटलिंग वेलोसिटी है। आल्सो कंप्यूट द लेंथ ऑफ द ग्रेट चैम्बर ऑफ द फ्लो थ्रू वेलोसिटी इज 0.3 मीटर पर सेकंड। एक आपने डेप्थ मालूम करना है। द नेक्स्ट वन इज़ द फ्लो थ्रू वेलोसिटी जो है वो गिवन है 0.3 मीटर पर सेकंड, तो आपने लेंथ मालूम करना है। VS is equal to 2.3 meter per second and VH is 0.3 meter per second, so D is 0.9 वो गिवन है, डेप्थ 0.9 है। यहाँ पे डेप्थ डायरेक्ट गिवन है, आपने टाइम मालूम करना है। तो अगर टाइम गिवन है, टाइम मालूम करना है और डेप्थ गिवन है, सेटलिंग वेलोसिटी भी गिवन है, तो सिंपल आप टाइम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूला से। अगर आपने फ़्लो थ्रू वेलोसिटी जो है वो मालूम करना है तो फ़्लो थ्रू वेलोसिटी वो बराबर है VH is equal to D डिवाइड बाई T, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल इसको हम कहते हैं लेंथ। तो लेंथ आपने मालूम करनी है और टाइम जो है डिटेंशन टाइम वही हमारे पास यहाँ से मालूम हो जाएगी। तो डिटेंशन टाइम अगर आपको मालूम है और हमारे पास जो VH है
वो भी गिवन है 0.3 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल आप डिस्टेंस जो है मतलब एल जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये सिंपल दो फार्मूला जो है वो आप कंबाइन करना है बस। द थर्ड वन इज़ दी हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, HLR जिसको हम कहते हैं। इसको हम SLR या सरफेस लोडिंग रेट या ओवरफ्लो रेट इसको हम कह सकते हैं। The surface loading rate is the hydraulic flow applied per unit surface area of the tank is called hydraulic loading rate। इसका मतलब क्या है? सपोज़ हमारे पास एक सरफेस है, हमारे पास एक पूरा टैंक होता है और उस टैंक का जो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, एक लेंथ होता है, एक विड्थ होता है और एक डेप्थ होता है। तो जब आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया, लेंथ और विड्थ। या अगर आप सपोज़ हमारे पास सर्कुलर टैंक है, तो अगर आपके पास डाया गिवन है तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 जो जिससे एरिया आता है जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। तो बेसिकली दिस एरिया एज द सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक। और एक होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ विड्थ और डेप्थ होता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब हमारे पास कोई भी वेस्ट या जो वेस्ट वाटर है वो आ रही है किसी भी टैंक में, तो सपोज़ हमने एक सरफेस एरिया जो है वो सेलेक्ट किया है, लेंथ और विड्थ सेलेक्ट किया है एक टैंक का, तो जितना फ़्लो उस सरफेस एरिया पे आ रहा है तो उसको हम कहते हैं SLR सरफेस लोडिंग रेट, कि इस सरफेस पे कितना लोड कितने टाइम पे आ रहा है। सिंपल इसका ये मतलब है। HLR इज़ ऑल्सो इज़ द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर अप्लाइड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द ट्रीटमेंट बेसन एज एक्सप्रेस्ड एज द मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। इस यूनिट से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मीटर क्यूब कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो एक ख़ास सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है, तो एक ख़ास सरफेस एरिया पे आ रहा है कितने टाइम में, डे या मीटर सेकंड या मिनट या एक्सेट्रा। तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी सरफेस एरिया पे आ रहा है कितने टाइम में, तो इसको हम कहते हैं सरफेस लोडिंग रेट। और इसका जो इक्वेशन है SLR, इस डेफिनेशन से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना फ़्लो आ रहा है कितनी सरफेस इस एक ख़ास सरफेस एरिया पे, तो इसको हम कहते हैं SLR। तो SLR इज इक्वल टू फ्लो डिवाइड बाय सरफेस एरिया। तो अगर आप इस फार्मूला को देख लें तो फ्लो इज़ बेसिकली Q और सरफेस एरिया एस होता है। तो एस और Q जो है वो बेसिकली बराबर है सेटलिंग वेलोसिटी की, और सेटलिंग वेलोसिटी का जो है वो क्या होता है वी एस डिवाइड बाय बेसिकली सेटलिंग वेलोसिटी एज VS इज इक्वल टू डेप्थ डिवाइड बाय टाइम। तो इससे डेप्थ और टाइम दोनों इससे आ सकती है। ये कन्वर्जन आप कर लें, बिल्कुल इजी है। बेसिकली Q जो है वो हमारे पास वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम होता है और सरफेस एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ है। तो लेंथ और विड्थ जो है वो यहाँ पे सरफेस एरिया के लेंथ और विड्थ से क्रॉस हो जाएंगी, तो सिंपल डेप्थ बच जाएगा। और डिवाइड बाय टाइम जो है वो ऑलरेडी Q में गिवन है, Q इज इक्वल टू द वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो डेप्थ डिवाइड बाय टाइम बचता है, तो इस डेप्थ डिवाइड बाय टाइम जो है वो बेसिकली बराबर है सेटलिंग वेलोसिटी की। तो इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि SLR जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है सेटलिंग वेलोसिटी की। और इसका टिपिकल जो डिज़ाइन वैल्यू है वो 400 से 800 गैलन पर डे फॉर फीट स्क्वायर जो है वो बनता है। इसका एक एग्जांपल भी ले लें। एज्यूमिंग द डायमीटर ऑफ क्लैरिफायर टू बी 20 मीटर एंड द वेस्ट वाटर फ्लो रेट इज़ 10 mld मिलियन लीटर पर डे। एक MGD होता है मिलियन गैलन पर डे। Calculate the detention time and the surface loading rate of the clarifier having waste water depth of 2.5 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे डाया जो है एक टैंक का वो गिवन है 20 मीटर है, फ्लो रेट जो है वो 10 mld है, डेप्थ जो है वो 2.5 मीटर है। कैलकुलेट द डिटेंशन टाइम एंड सरफेस लोडिंग रेट SLR, दो चीज़ें मालूम करनी है।
तो SLR अगर आप मालूम करेंगे तो SLR का जो फार्मूला है वो बराबर है फ्लो डिवाइड बाय सरफेस एरिया की, और वो सिंपल न्यूमेरिकली इक्वल है सेटलिंग वेलोसिटी की। तो सरफेस एरिया आपने पहले मालूम करना होगा। सरफेस एरिया यहाँ पे जो डाया है वो गिवन है 20 मीटर, तो इसका मतलब यह है कि सर्कुलर टैंक है, तो सर्कुलर के का जो सरफेस एरिया है वो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 से आसानी से मालूम हो सकता है। तो 5 डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 से जो है वो वैल्यू आती है 314.15 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपने सरफेस एरिया मालूम की है और फ्लो रेट 10 mld है तो मिलियन लीटर पर डे, तो इससे आसानी से आप तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर क्यूब में, क्योंकि हमारे पास जो ये सरफेस एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है। तो इसको भी, ये फ़्लो को जो आपने मिलियन लीटर पर डे है, तो इसको आपने कन्वर्ट करना होगा मीटर क्यूब में। तो ये जो हमारे पास ये आप मिलियन 10⁻⁶ है लीटर, इसको आपने अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ पर मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 1000 पे डिवाइड करना होगा। तो 10⁻⁶ और 10⁻³ ये दोबारा 10⁻³ बनता है। तो जब इसको आप 314.15 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है SLR में जो है सरफेस एरिया हमारे पास वो हमने मालूम की है 314.15, तो इससे आता है 31.83 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये हमारे पास आता है SLR। तो सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो बराबर है डेप्थ डिवाइड बाय टाइम, या SLR जो है वो बराबर है डेप्थ डिवाइड बाय टाइम की। या यहाँ पे आप देख सकते हैं SLR जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है सेटलिंग वेलोसिटी की। तो SLR अगर न्यूमेरिकली इक्वल है सेटलिंग वेलोसिटी की, तो हम यहाँ पे SLR के जगह सेटलिंग वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकली इक्वल है। तो VS इज इक्वल टू D डिवाइड बाय टाइम। तो D इज़ द डेप्थ एंड T इज़ द टाइम। सो डेप्थ हमने जो डेप्थ जो है वो 2.5 मीटर गिवन है। VS आपने मालूम किया, VS इज़ बेसिकली न्यूमेरिकली इक्वल टू SLR विच इज़ 31.83। तो VS भी मालूम हुआ, D भी मालूम हुआ, T आप इस सिंपल आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वियर लोडिंग रेट। इसको हम कहते हैं WLR। वियर लोडिंग रेट का क्या मतलब है? ये जो हमारे पास जितने भी सेडिमेंटेशन टैंक्स होते हैं, अगर चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो क्या इसका नाम है रेक्टेंगुलर हो, तो उसमें कुछ वेयर्स लगे होते हैं। मैं आपको एक वीडियो है, मैं आपको सिंपल उसको उसमें समझा सकता। ये आप देख लें, ये हमारे पास एक सेडिमेंटेशन टैंक है जिसमें ये सॉलिड पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाती है। ये एक पूरा सेडिमेंटेशन टैंक है। इसमें ये एरिया है, इसमें पानी जो है वो मतलब क्लीनिंग के लिए हमने सेडिमेंटेशन टैंक में लिया हुआ है। ये सेडिमेंटेशन टैंक है, ये पूरा सेडिमेंटेशन टैंक है। और ये जो बीच में जो नालियाँ है, इसका मतलब ये है कि जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पे जो वेस्ट वाटर से जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आसानी से बैठ जाती है। यहाँ पे आप देख लें, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो अगर डिस्टर्बेंस ना हो तो जितनी भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो आसानी से या इस टैंक में नीचे बैठ जाएगी। और जो क्लीन वाटर है विदाउट सॉलिड पार्टिकल्स है वो इस नालियों के ज़रिए इस मेन नाली में चला जाएगा, और यहाँ से हम जो क्लीन वाटर है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इस मेन टैंक से पानी निकालने के लिए छोटे छोटे परनाले लगे होते हैं, या इस एज पे परनाले लगे होते हैं, ताकि इस टैंक से पानी जो है वो इस मेन चैनल में चला जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टैंक से आसानी से पानी जो है वो इस मेन चैनल पे चला जाए। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे परनाले जो है ये लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं वियर। ये सारे लगे होते हैं, ये आप देख लें, हर एक लेंथ पे ये लगे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं वियर। तो ये वियर जो है ये बेसिकली द क्लीन वाटर फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक टू ए मेन चैनल ले जाने के लिए लगा हुआ होता है। ये देख लें,
ये यहाँ से पानी जो है वो सेडिमेंटेशन टैंक से यहाँ से एक मेन चैनल पे पानी आता है। यहाँ ये देख ले, ये बिल्कुल इजी आपको नज़र आएगा। ये एक वेयर टाइप जो है, ये हर छोटे छोटे वेयर जो है लगे होते हैं ताकि जो पानी जो है सेडिमेंटेशन टैंक से पानी इस मेन चैनल में सिंपल आ जाए। ये आप देख ले, दोनों साइड से पानी इस सेडिमेंटेशन टैंक से मेन चैनल में आता है। अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर में किस तरह आता है ये आप देख ले। सर्कुलर से पानी इस मेन चैनल्स में आते हैं। ये एक चैनल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर, हर एक चैनल में आता है। ये आप देख ले, ये एक परनाला लगा हुआ है। अगर ये यहाँ तक पहुँच जाए तो सिंपल उस मेन चैनल तक पानी आसानी से चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वेयर। तो वेयर लोडिंग रेट का क्या मतलब है कि जो द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर फ्लोइंग ओवर अ यूनिट वेयर लेंथ ऑफ द टैंक इन अ डे, इसमें कितना लोड होगा। तो फ्लो रेट डिवाइड बाय द टोटल वेयर लेंथ, कि हमारे पास पूरा वेयर का लेंथ क्या होगा, कितनी। अगर लेंथ कम हो तो इसका मतलब ये है कि लोडिंग रेट जो है वो ज़्यादा होगा। अगर लेंथ ज़्यादा हो तो लोडिंग रेट जो है वो कम होगा। हर एक वेयर पे लोडिंग रेट कम होगा, मतलब जितना लेंथ कम होगा, वेयर लेंथ जो है वो कम होगा तो वेयर लोडिंग रेट, हर एक वेयर पे लोडिंग रेट जो है वो ज़्यादा होगा। सिंपल एक मिसाल इसकी है कि एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें कुछ चीज़ें आपने याद करनी होगी। एक है बिल्कुल एज पे जो वेयर्स लगे होते हैं, एक टैंक की बिल्कुल एज पे जो वेयर्स लगे होते हैं, तो वो वेयर जो है वो डायरेक्टली बराबर होंगे विड्थ ऑफ द टैंक की। और अगर ये एज पे नहीं लगे हैं तो ये आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से इसकी 2 लाइंस है, यहाँ पे ये एक एज का एक लाइन है और ये रेड एक लाइन दूसरा लाइन है, तो यहाँ पे एक लाइन बनता है। और यहाँ पे अगर आप देख लें, अगर ये यहाँ है तो एक रेड लाइन ये होगा, ये एक रेड लाइन होगा और ये दूसरा रेड लाइन ये होगा। तो यहाँ पे 2 लाइंस है तो इसलिए ये हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट मल्टीप्लाइड बाय 2। और यहाँ पे अगर आप देख लें, ये रेड लाइंस मार कर ले तो ये 4 लाइंस बनते हैं, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। और टिपिकल डिज़ाइन वैल्यू जो होगा वो ज़्यादातर 10,000 गैलन पर डे पर फीट स्क्वायर तक होता है, पर फीट तक होता है। एक एग्जांपल इसकी है, a primary clarifier is 20 feet wide, 60 feet long and has a side water depth of 12 feet. The clarifier has 2 effluent troughs across the width that allow the water to flow over both sides of each trough. The average flow to the clarifier is 0.65 million gallon per day. Calculate the wear flow rate of this clarifier. ये हमारे पास एक क्लेरिफायर गिवन है और इसमें 2 वेयर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे शुमार होंगी 2 चैनल्स लगे हुए हैं, तो ये 2 चैनल्स में शुमार होगी 4 वेयर्स। तो इसका जो विड्थ होगा उसको सिंपल हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल यही है। तो WLR जो है वो फ्लो डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वेयर है। तो फ्लो हमारे पास गिवन है, लेंथ भी गिवन है, तो लेंथ हम किस तरह मालूम करेंगे, लेंथ सिंपल विड्थ मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हमारे पास लेंथ ऑफ द वेयर होगा। और फ्लो किस तरह है, फ्लो हमारे पास गिवन है 0.65 mgd। तो 0.65 mgd मिलियन गैलन पर डे जो है वो हम मिलियन को हम कहते हैं 10 to the power 6। तो 10 ये आप देख सकते हैं 10 to the power 6 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6 हम करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 650,000 गैलन पर डे बनता है। तो फ्लो हमारे पास गैलन पर डे में गिवन है और लेंथ ऑफ द वेयर जो है वो गिवन है फीट में, तो ये बनता है 8125 गैलन पर डे पर फीट, ये बनता है WLR। अगर हमारे पास टैंक जो है वो सर्कुलर होगा तो सर्कुलर के लिए हाइड्रोलिक लोडिंग रेट फॉर सर्कुलर टैंक जो है वो क्या होगा,
तो वो हम लेंगे जो वेयर लोडिंग रेट है वो C इज इक्वल टू पाई डी, क्योंकि हमारे पास लेंथ वेयर ऑफ द लेंथ जो है वो मीटर में होता है या फीट में होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर, अगर हमारे पास सर्कुलर है तो इसका लेंथ जो है वो उसको हम कहते हैं सरकम्पेरेंस। सरकम्पेरेंस बेसिकली बराबर होती है फाई डी की। तो डी जो है वो डायमीटर है और फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सरकम्पेरेंस बनता है। तो ये सरकम्पेरेंस बेसिकली लेंथ ऑफ द सर्कल होता है। तो ये आप देख लें, WL इज इक्वल टू फ्लो डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वेयर। सिंपल वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे लेंथ जो है वो डिफरेंट फार्मूला से मालूम होता है। ये एक एग्जांपल है, फ्लो ऑफ सर्कुलर क्लेरिफायर गिवन है, फ्लो गिवन है गैलन पर डे में। द क्लेरिफायर इज 24 फीट एंड डायमीटर भी गिवन है विद द वेयर सेट ऑफ 1 फीट फ्रॉम द आउटसाइड वॉल। ये आप देख ले 1 फीट फ्रॉम द आउटसाइड वॉल, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फॉर अ वेयर डायमीटर ऑफ 22 फीट कैलकुलेट द वेयर, यहाँ पे जी ओके। WLR गिवन है, अच्छा WLR गिवन है फ्लो डिवाइड बाय लेंथ। तो लेंथ जो है वो हमारे पास पाई और पाई डी के बराबर है। वेयर डाया जो है वो गिवन है 22 फीट। तो लेंथ ऑफ द वेयर हमने मालूम की। नाउ WLR जो है वो फ्लो हमारे पास गिवन है और सिंपल वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ द वेयर जो है वो हम उस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा WLR। द टोटल क्वांटिटी, अच्छा द नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनिक लोडिंग रेट या वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट। इसका क्या मतलब है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट? द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट आर अप्लाइड पर डे पर यूनिट वॉल्यूम ट्रीटमेंट बेसन ऑफ द टैंक। एक ख़ास सरफेस एरिया पे कितना ऑर्गेनिक लोड आता है, ऑर्गेनिक लोड आता है, इसको OLR कहते हैं, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इसको हम कहते हैं। तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इज इक्वल टू द ऑर्गेनिक मैटर डिवाइड बाय सरफेस एरिया। एक होता है SLR, तो सरफेस लोडिंग रेट। सरफेस लोडिंग रेट का क्या मतलब है कि द वेस्ट वाटर दैट आर कम ऑन द सरफेस ऑन अ सरफेस एरिया, एक ख़ास सरफेस एरिया पे कितना वेस्ट वाटर आ रहा है। और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट में इसमें एक फ़र्क यह है कि जो हमारे पास एक वेस्ट वाटर है तो उस वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक लोड कितना है, उसमें जो वेस्ट कंटेंट है वो कितना है, उस वेस्ट वाटर में वेस्ट कंटेंट कितना है। तो एक ख़ास सरफेस पे जितना वेस्ट कंटेंट ज़्यादा होगा और OLR जो है वो ज़्यादा होगा। सिंपल एक यही इसमें डिफरेंस यह है। इसमें ऑर्गेनिक लोडिंग रेट में आप देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, जो सपो एक वेस्ट वाटर है वो कम्बिनेशन होता है वाटर और वेस्ट की। तो वेस्ट मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है उस वेस्ट में वेस्ट वाटर में, तो अगर आप उस सिर्फ वेस्ट को काउंट करेंगे उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक लोड। तो अगर एक ख़ास सरफेस एरिया पे जितना ऑर्गेनिक लोड आता है तो उसको हम कहते हैं OLR। इसमें एक दो फार्मूलाज हैं, एक कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक लोड मल्टीप्लाइड बाय द फ्लो और वॉल्यूम, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक ख़ास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या कम होगी, एक ख़ास वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक लोड या ज़्यादा होगा या कम होगा, मल्टीप्लाइड बाय द फ्लो, टोटल जो हमारे पास फ्लो है उसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 8.34 पाउंड पर गैलन में। क्योंकि ये सॉलिड मैटर्स है, ऑर्गेनिक मैटर्स है, तो ये हम वेट में काउंट करते हैं, लीटर में नहीं करते। तो इसको हम कहते हैं 8.34 LBs पर गैलन। तो ये कांस्टेंट है कि पर गैलन में हमारे पास 8.34 पाउंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। सो द फ्लो ऑफ, ये एक एग्जांपल है। So this is the example. The flow of to a clarifier is 1.2 million gallon per day. ये given है, and the concentration of the suspended solid in the flow is 2500 milligram per liter. ये आप देख सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर, ये ग्राम में given है। How many pounds of suspended solid came into the clarifier each day?
ये जो वेस्ट वाटर आ रहा है इसी क्लेरिफायर में, तो कितना फाउंड जो है, कितना वेट जो है वो सस्पेंडेड सॉलिड इसमें होती है। तो सिंपल यही है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। सो इफ द फ्लो रेट इज एंटर्ड इन द मिलियन गैलन पर डे, सो द आंसर विल बी इन द फाउंड पर डे, फाउंड्स पर डे, क्योंकि हम सिर्फ सॉलिड्स का जो है वो कंसनट्रेशन मालूम करना चाहते हैं। तो इसका एक फार्मूला जो है कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 8.34, ये आप देख लें। तो कंसनट्रेशन जो है वो गिवन है 2500 में, फ्लो जो है वो भी गिवन है 1.2 मिलियन गैलन पर डे। सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6, जो गैलन है तो गैलन पर डे जो है वो ये सिंपल 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8.34, तो ये बनता है 25020 LBs पर गैलन। इस सिंपल एक फार्मूला, ये एक असाइनमेंट है, ये आपने करना होगा। जो आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है, ये 4 एग्जांपल्स है, 1 2 3 4, ये 4 एग्जांपल्स है। ये ऐसा लेक्चर जो है ये मैं अपलोड करूँगा, और ये वीडियो जो है वो आपने देखना होगा कि किस तरह जो है हम ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो आपका ये होगा। ये वो जो सिंपल फार्मूलाज है वो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज़ द डिटेंशन टाइम, द सरफेस लोडिंग रेट, वेल लोडिंग रेट, सॉलिड लोडिंग रेट या ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जिसको हम कहते हैं। देन द जनरल कैलकुलेशन, ये एक 1 फीट क्यूब में जो है वो 7.48 गैलन होता है। ये सिंपल एक फार्मूला है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है। वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर टैंक जो है वो हम मालूम करते हैं 5d² डिवाइड बाय 4 या 5r² मल्टीप्लाइड बाय h। इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। तो ये वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर टैंक बनता है। जो हमारे पास ये जो वी शेप बॉटम होता है, जो स्लज जोन होता है, ये वी शेप होता है ताकि जो सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं तो ये यहाँ पे कलेक्ट होती हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है ये है πr² मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइड बाय 3। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर टैंक प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन बॉटम। सो वॉल्यूम ऑफ द, इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे देख लें। तो इसको सिंपल ये जनरल कैलकुलेशन है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्राइमरी क्लेरिफायर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? सो द रेट ऑफ द इनफ्लो इज इक्वल टू रेट ऑफ द आउटफ्लो। जितना वॉल्यूम आता है वो उतना आउटफ्लो भी होगा आपका। द फ्लो ऑफ द सीवेज शुड बी डिफ्यूज्ड इक्वली अक्रॉस दिस सेक्शन। आपका जितना भी जो वेस्ट वाटर है वो पूरी हर एक मतलब टैंक जो है, अगर आपका स्मूथ टैंक बना हुआ है तो जितना भी लोड है इसी टैंक में तो हर एक पॉइंट में आपका सेम लोड होगा। आउटलेट फ्लो इज़ थिन एज पॉसिबल। एज थिन एज पॉसिबल का मतलब है कि अबाउट 90% ऑफ का जो वेस्ट वाटर है वो क्लीन होना चाहिए सेडिमेंटेशन टैंक में। डिस्टेंस बिटवीन द आउटलेट एंड इनलेट चैनल शुड बी कांस्टेंट। ये इनलेट और आउटलेट का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। द शेप ऑफ क्लेरिफायर, शेप मुख्तलिफ टैंक के मुख्तलिफ टैंक्स होते हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, सर्कुलर होता है, एक हुपर बॉटम जो है वो होता है। ये 3 टाइप्स है। रेक्टेंगुलर का क्या मतलब है, उसमें लेंथ विड्थ और डेप्थ होता है। सर्कुलर में डायमीटर और डेप्थ होता है, और हुपर में हुप्स होते हैं। ये एक डायग्राम आप देख लें, इसमें मैंने नहीं डाला है लेकिन ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हुपर शेप्स क्या होता है। क्लेरिफायर का पर्पस क्या है, किसी भी क्लेरिफायर का मतलब क्या होता है, क्यों हम क्लेरिफायर जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि सॉलिड पार्टिकल जितनी भी लिक्विड में है वो रिमूव हो जाए थ्रू सेडिमेंटेशन। टू रिमूव द स्कम फ्रॉम द लिक्विड बाय फ्लोटेशन, इसको हम स्किमिंग टैंक भी कहते हैं। टू थिकन द सॉलिड फॉर रिमूवल एंड फर्दर ट्रीटमेंट, जितना भी हम रिमूव कर सकते हैं सॉलिड पार्टिकल तो हम इसको रिमूव कर ले, ताकि जो अगला ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको थोड़ी सी जो है वो आसानी हो। स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ द क्लेरिफायर फंक्शन विल बी डिपेंड अपॉन द ट्रीटमेंट प्रोसेस एम्प्लॉयड। ये भी एक मतलब है कि हर एक ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है ये चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, तो हर एक का अपना अपना जो है वो अलग फंक्शन होता है।
इसके कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, या इस तरह सर्कुलर की भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ये आप देख सकते हैं, ये एक सर्कुलर ये एक रेक्टेंगुलर क्लेरिफायर है। इसमें इसको हम कहते हैं हुप टाइप, हुपर बॉटम। यहाँ पे जो जितना भी वेस्ट है यहाँ पे कलेक्ट होता है और यहाँ से हम फिर इसको निकालते हैं। ये इनलेट है और ये आपका आउटलेट है। यहाँ पे जो वाटर है यहाँ पे इन होता है और यहाँ पे आउट होता है। यहाँ पे एक बिफल वॉल लगा होता है। बिफल वॉल का मतलब ये है कि जो फ्लो यहाँ पे आता है तो इसको बिफल वॉल के ज़रिए इसकी वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाए, ताकि जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल आसानी से हो जाए। जितना भी अगर हमारे पास वेलोसिटी कम होगा तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होगा। द नेक्स्ट वन इज़ द सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक। ये आपका सर्कुलर है। अच्छा, कैलकुलेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, किस तरह हम डिज़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ द कंप्यूट द प्रेजेंट द फ्यूचर एवरेज डेली वेस्ट वाटर फ्लो, कि एक कम्युनिटी जो है वो कितना वेस्ट वाटर जो है वो जनरेट करता है। तो उसके लिए आपने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग और प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो मालूम करना है। अबाउट 30 ईयर आपका जो है वो फ्यूचर पॉपुलेशन मालूम होना चाहिए। देन फ्लक्चुएशंस रेट जो है वो मालूम होना चाहिए कि कितना फ्लक्चुएशन इसमें आता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप, कंप्यूट द कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट। किस तरह हम कैपेसिटी जो है वो मालूम करेंगे। सिंपल वॉल्यूम आपने मालूम करना है। तो अगर वॉल्यूम का मतलब ये है कि इसका कैपेसिटी जो है वो ये है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू द फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम। अगर आपका डिटेंशन टाइम मालूम है और फ्लो रेट जो है इतना फ्लो यहाँ पे आ रहा है, तो अगर आप वो भी आपको मालूम है तो इससे आप कैपेसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं या इसमें एक जो अगर आपके पास रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर में लेंथ विड्थ और डेप्थ मालूम करेंगे और वो लेंगे वॉल्यूम के लिए। और यहाँ पे जो है वो अगर सर्कुलर है तो डायमीटर और डेप्थ जो है वो लेंगे। बस यही एक स्टेप है। इस पे एक एग्ज़ाम्पल भी आपको गिवन है कि अगर हमारे पास डिटेंशन टाइम 4 आवर है, तो यहाँ पे कंप्यूट करें वॉल्यूम ऑफ द ट्रीटमेंट यूनिट। किस तरह हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। अगर हमारे पास क्यू एवरेज जो है वो 600 मीटर क्यूब पर डे है, पीक फैक्टर जो है 2.5 है, तो क्यू मिनिमम इससे मालूम कर सकते हैं 400 मीटर क्यूब पर डे। और क्यू मैक्सिमम भी हम मालूम कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द पीक फैक्टर विद क्यू एवरेज। तो यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन यूनिट्स और नॉर्मली डिज़ाइंड एट द पीक फ्लो। तो आपने पीक फ्लो मालूम करना है तो क्यों हम पीक यूज़ करेंगे, और डिटेंशन टाइम 4 आवर यूज़ करेंगे, तो इससे सिंपल आप वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। द थर्ड स्टेप इज़ द कंप्यूट द सरफेस एरिया एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सरफेस एरिया का मतलब यह है कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर है तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होगा, और अगर आपके पास सर्कुलर है तो उसमें गिवन होगा डायमीटर। तो डायमीटर से हम सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और उसको सिंपल आप मल्टीप्लाई करें डेप्थ से, तो ये हमारे पास एक वॉल्यूम होगा सर्कुलर के लिए। और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है कि जो विड्थ और डेप्थ है उससे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ अ ट्रीटमेंट यूनिट, कि किस तरह हम सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्यू एवरेज गिवन है, SLR जो है वो गिवन है, इससे हम मालूम कर सकते हैं। SLR जो है वो फ्लो डिवाइड बाय सरफेस एरिया के बराबर है। तो फ्लो गिवन है और SLR भी गिवन है, तो सरफेस एरिया से मालूम हो सकता है। फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ग्रिड चैम्बर ऑफ एनी रेक्टेंगुलर चैम्बर विद द फ्लो थ्रू वेलोसिटी इज़ 1.2 मीटर पर मिनट, क्यू एवरेज ये भी गिवन है। तो फ्लो थ्रू वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस या लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो लेंथ हम इससे मालूम कर सकते हैं। और अगर आपके पास लेंथ जो है वो मालूम हुआ, तो इससे आप जो है वो सरफेस एरिया भी मालूम कर सकते हैं। The fourth one is the computation of the dimension of the treatment unit by assuming suitable design criteria। हम इसमें assumption भी करेंगे। assumption का मतलब ये है कि इनलेट और आउटलेट, सपोज़ आपने लेंथ जो है वो मालूम की, तो लेंथ के लिए आपने इनलेट और आउटलेट वो भी ऐड करना होगा। द नेक्स्ट वन, अगर आपके पास डेप्थ मालूम हुआ है तो डेप्थ के साथ आपने फ्री बोर्ड भी ऐड करना होगा, और जो स्लज जोन है वो भी आपने ऐड करना होगा। तो ये assumptions होते हैं। इसमें अगर आप ये देख लें, द डिज़ाइन अ प्राइमरी क्लेरिफायर फॉर अ टाउन हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 3000। हमारे पास एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन जो है वो 3000 गिवन है।
द फॉर्मेशन ऑफ सीवेज में बी एज्यूम्ड एट 150 LPCD। हमारे पास एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन ये है और वो जो वेस्ट वाटर जनरेट करता है वो 150 LPCD है। पर कैपिटा जो है 150 लीटर वेस्ट वाटर जनरेट होता है। तो डेली फ्लो ऑफ सीवेज इससे हम मालूम कर सकते हैं। पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय LPCD, तो इससे लीटर पर डे एक पूरी कम्युनिटी से जनरेट होता है। डिटेंशन टाइम इसकी 2 आवर है, तो डिटेंशन टाइम से हम टैंक की कैपेसिटी मालूम करेंगे। तो ये जो डेली एवरेज फ्लो है ये हम टाइम पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आता है टाइम कैपेसिटी। सिंपल वही फार्मूला है, 3750,000 लीटर आता है। तो इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, सिंपल लीटर को मीटर क्यूब पे डिवाइड करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे डेप्थ जो है वो 2.5 मीटर हमने एज्यूम किया है। तो अगर आप डेप्थ आपको मालूम है तो सरफेस एरिया हमारे पास ये आता है 375 मीटर क्यूब। ये आपके ये आपका वॉल्यूम है। तो सरफेस एरिया किस तरह मालूम करेंगे? अगर आपके पास डेप्थ गिवन है तो वैसे वॉल्यूम जो है वो ये बेसिकली ये एक वॉल्यूम है, 375 मीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम का मतलब ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसमें लेंथ और विड्थ जो है इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को मालूम करने के लिए सिंपल आपने इसको डिवाइड करना होगा डेप्थ पे। तो अगर इसको डेप्थ पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया जो है वो लेंथ और विड्थ के बराबर है जो 150 की है, और अगर लेंथ आपका जो है वो बराबर है 4b की, मतलब 4 टाइम विड्थ जो है की है जो वो बराबर है, तो l की जगह हम 4b लिखेंगे और यहाँ से आप b विड्थ मालूम कर सकते हैं, लेंथ भी आप सिंपल 4b में b की जगह 6.5 लिख के आपके पास लेंथ भी आ जाएगा। अच्छा, ये जो एजम्पशंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनलेट और आउटलेट के 4 मीटर आपने लिया है, मतलब 2 मीटर आप इनलेट और आउटलेट ली है। तो टोटल लेंथ आपके पास 24.48 है, 4 इसके साथ आपने ऐड किया है 28.48, तो ये हम एज्यूम करते हैं 30 मीटर। यहाँ पे आप प्रोवाइड 1 मीटर फॉर स्लज एकमुलेशन, जो वेस्ट वाटर में जितना भी स्लज है, जो सॉलिड पार्टिकल है जो नीचे बैठ जाती है, उसके लिए आपने 1 मीटर जोन जो है वो दिया है, जिसको हम कहते हैं स्लज जोन। 50 सेंटीमीटर डेप्थ फॉर फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड जो है वो आपने जो ऊपर होता है उसने 50 सेंटीमीटर आपने ली है। सो द टोटल डेप्थ जो है 1 + 0.5 + 2.5 तो वो 4 मीटर बनता है। आपका टोटल डेप्थ जो है वो 4 मीटर होगा। सो द डायमेंशन इज़ 30 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 क्रॉस 4, ये एक बनता है। और अगर सर्कुलर होगा तो πd² डिवाइड बाय 4 होगा। हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो 5d² डिवाइड बाय 4 है, और जो हमारे पास सरफेस एरिया बनता है वो 150 है। इससे आपने सिंपल जो d है वो मालूम करना है, 14 मीटर है। इसमें अगर कोई मसला है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ये एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है, तो ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिटेल में पढ़ूँगा, लेकिन आप ख़ुद भी देख ले, मैंने इसको काफ़ी डिटेल से भी लिखा है। अगर कोई मसला इसमें हो तो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।